ویلکم بیک۔ شہرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے خبر شامل کریں گے اسلام آباد سے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں پولیس شہریوں کے ساتھ زیادتیاں کرنے لگی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانیں گے اپنے نمائندے سے۔ جی بتائیے گا کہ شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے، ایسی ہی ایک مثال سی آئی اے ایک ایسا ڈپارٹمنٹ لوگوں کو انصاف مہیا کرنے کے حوالے سے، ان کو تحفظ مہیا کرنے کے حوالے سے ایک بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے اور ایک بڑا محافظ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا سی آئی اے آفیسر ASI رانا تسنیم احمد، جو کہ تھانہ CIA I9 میں یہاں جموں سے ان کی جو شکایات آئی ہیں رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، اور میرے ساتھ موجود ہیں سائل شہباز علی ولد بشیر احمد۔ ان کا کہنا ہے کہ تھانہ CIA I9 میں 29 جون کو ان کو 3 دن تک بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جرم کے زیر حراست رکھا گیا اور ان کو قید و بند کی صورتیں برداشت کرنے پڑی۔ حقائق کیا ہے آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ آپ کو 3 دن بغیر کسی وجہ کے کیوں زیر حراست رکھا گیا؟ جناب 29 کو مجھے جیل بھیجا، اس سے پہلے 3 دن مجھے تھانے میں رکھا، تو میرے سامنے میرے ملازم کو مارتے تھے، کہتے تھے پیسے دیں گا کہ نہیں دیں گا۔ میں نے کہا یار میں پیسے نہیں دیں۔ آپ کے ملازم کو مارتے تھے؟ ہاں، مجھ جس کے ساتھ میں آ رہا اس کو مارتے تھے، اس کے داڑھی تو ہو جی۔ آپ کیوں آئے تھے یہاں پہ؟ میں اس ملازم کی بھابھی پکڑی تھی، ٹھیک ہے، ممتاز بی بی، اس کے پتہ کرنے آیا تھا کہ کیا وجہ ہے۔ صحیح ہو گیا۔ جب آپ آئے تو آپ کو بھی قید کر دیا گیا؟ جی، مجھے بھی پکڑ لیا گیا، اسے بھی پکڑ لیا گیا، کہنے لگے 4 لاکھ روپے لائے ہو۔ یہ کس نے ڈیمانڈ کی 4 لاکھ روپے؟ رانا تسنیم احمد۔ رانا تسنیم احمد، یہ صحیح۔ ایک اس کے ساتھ اور ہے ذوالفقار نامی، یہ دونوں مل کے پیسے۔ میں کہ یار آپ باجو گئے ہیں، کر لو جو کرنا ہے۔ تو مجھے کہنے لگے 4 پہ دے دیو، 4 ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں نے رات گزاری بڑی مشکل سے، مجھے خود ہی بلایا وہ ذوالفقار نے کہ بابا جی بات سنو، بیچتی چنگی نہیں ہوتی، پرچہ دے دیں، پیسے دے دیو، اسی نے وہ لائی لینے۔ میں کہ نہیں یار، ایک غریب آدمی میں سنے میں نہیں دینے۔ آج 3 دن سے مجھے وہاں رکھا، 4تھے دن کچھ میرے پیچھے سے آئے، انہوں نے اسے پوچھا کیا جی جوڈیشل کر دیا، میں نے مجھے جیل بھیج دیا۔ 3 دن میں جیل میں اور 4 دن وہاں سے میری ضمانت ہو گئی، میں آیا ہوں۔ آپ نے اس کے علاوہ بھی کوئی دیکھا؟ آپ سے 4 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی ہے تو کوئی اور بھی آپ نے دیکھا کہ جس سے پیسے لیے ہوں؟ جس کیس میں شادی اور پٹھانی، اس کے بھائی سے 2 لاکھ میں نہ لیا۔ اچھا، 2,45,000 لے کے ان کو چھوڑ دیا؟ پھر نہیں چھوڑا نہیں، ان کو کہا اور لے گیا، وہ گھر گئے ہیں، ان کو ابھی تک پیٹ رہا ہے۔ کوئی اس حوالے سے کوئی FIR وغیرہ درج نہیں کروائی اور یا اعلیٰ حکام سے کوئی گزارش نہیں کی FIR وغیرہ؟ درخواستیں دی ہیں، درخواستیں جو آپ نے دی ہیں ان پہ کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ ابھی نہیں ہوا، ابھی کچھ نہیں ہوا۔ میری اعلیٰ حکام سے بھی ہے، درخواست ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب شیخ رشید صاحب، وزیر داخلہ جناب عمران خان صاحب کہ مجھے انصاف دلائیں، جہاں چیز تک۔ ناظرین کرام، معاشرے کے بھٹکے ہوئے پسے ہوئے لوگ اور تمام غربا جن کو آخری امید ایک ہی ادارہ CIA یا پھر پولیس ڈپارٹمنٹ سے ہوتی ہے، اگر وہ بھی اس طرح جا بجا لوگوں کے حقوق کھانے، حق مارنے اور ان سے بھی رشوت لینے میں ملوث ہو جائیں گے تو آپ یہ سوچئے کہ ایک غریب آدمی جائے تو جائے کہاں انصاف کے لیے؟ تو ایک غریب کا معاشرے میں جینا بھی ناممکن نظر آتا ہے۔ عرفان امتیاز، میٹرو ون نیوز، اسلام آباد۔ اور یہاں خبر شامل کرتے ہیں حیدرآباد کے علاقے قاسم آباد سے، جہاں کچرے کے ڈھیر اور پینے کے صاف پانی نے لوگوں کا جینا دشوار کر دیا۔ علاقے قاسم آباد میں وقار ٹاؤن میں کچرے کے ڈھیر نے لوگوں کا جینا دشوار کر دیا۔ قاسم آباد کے علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کئی مہینے گزر جانے کے بعد بھی نہ تو کوئی صفائی کے لیے آتا ہے اور نہ ہی ہمیں پینے کے لیے صاف پانی ملتا ہے۔ لوگ صاف پانی سے بھی محروم ہیں، کئی ماہ تک انتظامیہ پلٹ کر دیکھتی بھی نہیں ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ کو یہاں پہ نہ بلدیہ والے یہاں آتے نہ واسا والے، ہماری پیدائش یہاں کی ہے، اور یہاں پہ ہم نے جب سے پیدا ہوئے ہیں یہاں سے ہم نے کبھی روڈ بنا ہوا نہیں دیکھا ہے، نہ یہاں پہ پانی ہمارے پاس پینے کا جو گندا پانی آتا ہے، نہ واسا والے ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرتا، ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ اور کچرا بھی یہاں دیکھ لو، آپ خود دیکھ لو، کچرا دیکھو، یہ روڈ اور راستوں کی حالت دیکھ لو آپ۔ یہ قاسم آباد شیدی گڑھ جو ہے
ये रेंजर्स हेडक्वार्टर के बराबर में जो मस्जिद है वहाँ गंदा पानी आता है, वज़ू करने के लिए लायक ही नहीं है। वासा वाले आते ही नहीं है, चेक करते ही नहीं है। घर में जो गंदा पानी होता है पीते हैं बच्चे खराब, उसका पेट खराब हो जाता है। जो रोडों पे पड़ा हुआ आते ही नहीं है, किचरे वाले ऐसे ही पड़ा हुआ है, सारे किचरे का ढेर लगे पड़े हुए। कितने टाइम से पड़ा है? तकरीबन कोई साल से ऊपर हो गए। आते ही नहीं है। आते ही नहीं है, आते ही बस वो जो रोड के बराबर होते हैं किचरे वो उठा के लेके जाते हैं, अंदर तो आते ही नहीं है। अभी भाई हमारा मुतालबा ये है कि हमारी जो है कॉलोनी है वकार टाउन, ये बहुत सालों से लावारिसों की तरह इधर लावारिस, जैसे हम लावारिस होते हैं ना लोग, हम ऐसा समझो लावारिस हैं, कोई हमें हमारा ख्याल करने वाला नहीं है। ये बिल्कुल जो गंदगी किचरा और ना पानी की गुंजाइश है, बिल्कुल पानी भी बहुत बुरा पानी आ रहा है। नमाज के लिए जाते हैं, वज़ू के लिए पानी नहीं होता। इस मसलाइल में हम बहुत परेशान। वाले से भी ये मसला है कि कोई नहीं आता, बिल्कुल 2-2, 3-3 मंथ गुजर जाते हैं, इधर बहुत गंदगी होती है। अब हमारी गलियों में रोडों पे बहुत हालत बहुत बुरी ख़राब है, बहुत हालत। हम इस मीडिया मेट्रो 1 के बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारा साथ दिया और हमारी आवाज़ आला मकाम तक ये पहुँचाएँगे। ये हम कैमरामैन राशिद चांडियो के साथ जुल्फकार जावरी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। और यहाँ पर आपको बताएं, टंडोला यार में पब्लिक हेल्थ और एमसी टंडोला यार की गफलत के बायस शहर की अहम शहरा मीरवाह रोड तालाब का मंजर पेश करने लगी। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडोला यार ख्वाजा अजमेर कॉलोनी वार्ड 11 में, जहाँ पे पानी की निकासी का कोई निज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से बच्चों को स्कूल जाने में शदीद परेशानी लहा के, नमाजियों को मस्जिद जाने में शदीद परेशानी लहा के यहाँ के रिहायशियों की आला हकाम से अपील है कि इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। जी, और अभी आपको बताएं कि कहरोड़ पक्का के नवाही इलाके में बिजली की तारें जानवरों पर गिर गईं। कहरोड़ पक्का के नवाही इलाका रेंद ज्यादा बस्ती वगलियां वाला में बिजली की तारें जानवरों पर गिर गई हैं। बिजली की तारें गिरने से 2 कीमती गायें हलाक हो गईं। तारें गिरने से जानवरों के पास सोया शख्स बाल बाल बच गया। इलाका मुकीनों का एक्शन मैपको के खिलाफ एहतजाज। इलाका मुकीनों का कहना था कि बिजली की मेन तारें अरसा दराज से बुसीदा हो चुकी थी। कई मरतबा एक्शन मैपको को दरखास्तें दी गई हैं मगर नोटिस नहीं लिया गया। मुतासरीन ने मेट्रो 1 न्यूज़ की टीम से गुफ्तगू करते हुए बताया कि रात तकरीबन 9 का टाइम है, अचानक जैसे तार को भार लग गई है। मेरा तल पुत्र सुता पिया है, ऊँ खुदा अल्लाह की मेहरबानी से ये बचाव थी गया। जानवर दो सारे मर गए। हुकूमत को अपील है कि सारा नुकसान पूरा किया वने। मेन था टुट गई, मैं तलो सुता पिया, मेरे माल बचा खड़ा, 2 गाय मेरे मर गए तार की डांट की वजह न। हुकूमत को मेरी अपील है कि मेरा नुकसान पूरा किया वने। बाप दादी ना आए लिए आधा घंटा पूरा बाप दादी लाइन चलती रह गई तो असा तार हटेंदे रह गए। भजन मेन लाइन टुट गई है, हुकूमत साढ़े बाप दादी ना ली ऐसी जानवर तार टुट ढह भी है, कोई जो फीडर ट्रिप नहीं थिया ना ली की वजह नाल साढ़े ढेर सारा नुकसान थी गया। साढ़े तकरीबन 3.5-4 लाख का नुकसान थे, पर साढ़े गई मर गई। साड़ी हुकूमत नाल अपील है कि साढ़े मुआवजा पूरा किया वजे ते नाल इंक्वायरी करवा दे। जेडे बाप दादे जेडे ये ना एहलकार जिन्हें ना एलिए उन्हें को कड़ी तो कड़ी सजा दी वजे। मुतासरीन का कहना है कि बिजली की तारें गिरने से हमारे 3 लाख से ज्यादा मालियत के जानवर हलाक हो गए हैं। मैपको हुकाम हमारे नुकसान का अजाला करे। कैमरा टीम नासिर इस्लाम के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो 1 न्यूज़, कहरोड़ पक्का। मजीद खबरें भी शहरनामे का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप रहिए शहरनामे के साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं, अल खिदमत फाउंडेशन मैनेजमेंट प्रोग्राम के तहत अल खिदमत रसाकारों को खराज तहसीन पेश करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको बताएं कि रमज़ानुल मुबारक और गुज़िश्ता चंद माह में रोनमा होने वाले मुख्तलिफ सानेहात के दौरान खिदमत सर अंजाम देने वाले अल खिदमत रसाकारों को खराज तहसीन पेश करने के लिए अल खिदमत कॉम्प्लेक्स लाहौर में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक थे। तकरीब से खिताब करते हुए डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक ने कहा कि ये बात खुशाइंद है कि हमारे नौजवान खिदमत खल्क के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हर वो नौजवान जो दुखी इंसानियत की खिदमत के जज्बे से सरशार है वो इस टीम का हिस्सा बन सकता है। खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से। तो आपको बताएं कि फैसलाबाद में थाना झुमरा की हुदूद में मजलूम शहरी अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठा। मजीद जानते हैं मोहम्मद फैसलाबाद से अपने ब्यूरो चीफ उसामा इकराम की इस रिपोर्ट में।
फैसला धनौला के करीब थाना जुमरा की हदूद में डकैती का वाकया पेश आया। मजलूम शहरी अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठा। मुतासरा शख्स के डेरे पर 6 से 7 अफराद पुलिस के बेस में दीवार फैलाकर दाखिल हुए और वहां मौजूद अफराद को रस्सियों से बांधकर यरगमाल बना लिया और डेरे पर मौजूद नकदी 35 बकरे और दिगर माल मवेशी लेकर फरार हो गए। मुतासरा शहरी का कहना है कि सानू कंध चढ़ के ਸਾਨੂੰ ਨੱਪ ਲਿਆ। ਗੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 5-6 ਚੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਬੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਸਵਾਲ ਔਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਔਰਾ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਾਣ ਜੋ ਕਰਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਸੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲੂਮਾਤ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। जबकि पुलिस ने FIR दर्ज करने से इनकार करते हुए उल्टा मुतासरा शहरी को ही कटहरे में ला खड़ा किया और केस दर्ज करने के लिए भारी रकम का मुतालबा कर दिया। मुतासरा शहरी दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। हकाम बाला से इंसाफ की फराहमी के लिए दुहाइयाँ। मुजाहरीन का कहना है कि हमारा अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। उनका मुतालबा है कि CPO साहब से कि हमारी FIR दर्ज की जाए और हमारे साथ इंसाफ किया जाए। कैमरामैन सईद इशफाक शाह के साथ उसामा अकरम, मेट्रो 1 न्यूज़, फैसलाबाद। और अब खबर शामिल करेंगे लियाकतपुर से। तो आपको बताएं कि लियाकतपुर में थाना तरंटा मोहम्मद पनाह की हुदूद में कत्ल की लरज़ाखेज वारदात हुई है। अब्दुल मालिक नामी दरिंदा सिफ्त शख्स ने अपने साले की बीवी को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। आपको बताएं कि लियाकतपुर के नवाही इलाके की रिहायशी इरशाद बीबी खेतों में काम कर रही थी कि अब्दुल मालिक नामी संगदिल शख्स ने उसे कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूला की उम्र 55 साल थी। मकतूला 5 बच्चों की मां है। ज़राए के मुताबिक कुछ अरसे से घरेलू तनाज़ा चल रहा था, जिस पर आज अब्दुल मालिक ने खातून को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। और अभी आपको बताएं कि दीगर शहरों की तरह रायवंड शहर में भी 100 एकड़ रकबे पर मुहित मवेशी मंडी कायम कर दी गई। मजीद अहवाल जानते हैं मलिक कैसर अमीन से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान करीब आते ही दीगर शहरों की तरह रायवंड शहर में भी मवेशी मंडी सज गई है। यहाँ पर व्यापारियों और ख़रीदारों की आमद का सिलसिला जारी है। मेरे साथ यहाँ पर कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस हवाले से कि उनका क्या कहना है। जी, मैं मवेशी मंडी बकरा ख़रीदने के लिए आया हूं। जब यहां आकर रेट पूछे हैं और दरियाफ्त किए हैं तो रेट बहुत ज़्यादा है, आसमान से बातें कर रहे हैं। पिछली दफ़ा की निस्बत, पिछले साल की निस्बत जो बकरे की कीमत है 10 से 15 हज़ार रुपये जो है ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम सुन्नत इब्राहीम जो है उस पर अमल कर पाएंगे। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारी कीमत ख़रीद है जो बिल्कुल कम होकर रह गई है। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि इस वक्त पिछले साल की तरह इस वक्त इस साल जो है बकरों का जो रेट है वो आसमान से बातें कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर इंतज़ामिया की बात की जाए तो ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से तमाम इंतज़ामात क्लियर कर दिए गए हैं। जी, और यहाँ पर आपको बताएं कि मुल्क भर की तरह उकाड़ा में भी मवेशी मंडी सज गई है। आपको बताएं कि मंडी में गबरू और शेरों की धूम है। भी मवेशी मंडी सज चुकी है। अगर मंडी में जानवरों की बात करें तो एक से एक खूबसूरत जानवर मंडी में लाया जा रहा है, लेकिन इस वक्त उकाड़ा मंडी में गब्बरू और शेरों की जोड़ी ने खूब धूम मचाई हुई है। दूर दराज से लोग इन्हें देखने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन इनकी कीमतों की बात करें तो इनकी एक की कीमत 18 लाख और दूसरी कीमत 20 लाख बताई जा रही है। जब हमारी इनके मालिक से बात हुई तो उनकी कहना था कि जानवर पालना इतना आसान काम नहीं है। इन्हें दिन में चारा, देसी घी, मक्खन और बादामों से इनकी सेवा की जाती है, जिनकी वजह से इनके दाम भी उस हिसाब से बताए जा रहे हैं। लेकिन कस्टमर हज़ारात से जब हमारी बात हुई तो उनको कहना था कि व्यापारी मुँह मांगी रकम मांग रहे हैं, जिससे हम काफ़ी म्यूज़ दिखाई दे रहे हैं। और मंडी में इंतजामात की बात करें तो मंडी में सायेदार जगह और ठंडे पानी का भी इंतज़ाम किया गया और पार्किंग के लिए वसी जगह का इंतखाब किया गया। और व्यापारी हजरात
काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं इंतज़ामिया के इंतज़ामात से। और जब शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि इंतज़ामिया इंतज़ामात तो कर रहे हैं, लेकिन व्यापारियों के जो मुंह मांगे दाम है इन पर भी कुछ तवज्जो दे और इनके दाम में कुछ कमी की जाए और हम बासानी अपने कुर्बानी ईद के लिए जानवर खरीद सकें। जी आपको बताएं कि पंजाब भर के दूसरे शहरों की तरह तहसील चूनिया में भी सरकारी सतह पर मवेशी मंडी लग गई है, जहां भारी भरकम जानवर लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल गफूर अंजुम से। जी अब्दुल गफूर अंजुम, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा का चांद नज़र आ चुका है। इस वक्त गवर्नमेंट की जानब से तहसील भर में, इलाहाबाद, छांगा मांगा और कंगनपुर में सरकारी सतह पर मवेशी मंडियां लगा दी गई हैं, जहां पर तमाम इंतजामात किए गए हैं। इस वक्त मैं चूनिया के नवाही इलाके दरबार शेख इल्मुद्दीन की एक मवेशी मंडी पर मौजूद हूँ, जहाँ पर हर किस्म के छोटे और बड़े जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। इस वक्त मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है, मजीद हम इनसे जानते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और क्या खरीदने के लिए आए हैं। जी, ये हमारी जो इलाकाई मंडी है और सरकारी जो इसमें इंतज़ाम किए गए हैं बहुत अच्छे हैं। साया का इंतज़ाम किया गया है, उसके बाद पानी का इंतज़ाम और बहुत अच्छी जो लोकेशन पे इस मंडी को लगाया गया है। और हम जो अगर इनकी रेट की बात की जाए जानवरों की, तो वो एक आम गरीब आदमी की बिसात से वो बहुत ज़्यादा हैं। लोग आते, हम भी आए हैं, पूछते हैं और इनका जो पिछले साल की निस्बत जो डबल ट्रिपल रेट जो डिमांड कर रहे हैं व्यापारी, तो इस हवाले से जो आते हैं, जो भी अभी तो इसी तरह आना जाना लगा हुआ है कि गाहक आते हैं और पूछते हैं और कोई फाइनल नहीं हो पाता कोई रेट में, तो इस हवाले से हम भी आए हैं। तो कोशिश करेंगे ख़रीदने की। तो फ़िलहाल तो जो है ना वो बहुत बसात से ज़्यादा रेट मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने खरीदारी की बात सुनी थी। खरीदार का कहना था कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो जानवर पिछले साल 30,000 का वो 50 से 60,000 का मिल रहा है। इसी हवाले से जब हमारी व्यापारियों और व्यापारियों से बात हुई, उनका कहना था कि हम पीछे से जो जानवर लेकर आते हैं, जो पिछले साल हमें जो 50,000 का मिलता था, अब वो हमें 70 से 80,000 का मिल रहा है। इसके अलावा चारा और दूसरे जो जानवरों को जज़ा खिलाए जाते हैं, उनमें तकरीबन 50 से 70% इजाफा हो चुका है। जी, और यहाँ पर आपको बताएं कि शेखोपुरा के मुख्तलिफ थानों की हुदूद में दिन दहाड़े डकैती की मुतअद्दिद वारदातों से शहरी लाखों रुपए नकदी और कीमती अशिया से महरूम हो गए। आपको बताएं कि थाना सदर फारूकाबाद के इलाके चंबल गांव में डकैती की वारदात में 16 रुकनी डाकू गैंग ने जमींदार के घर से लाखों नकदी और तलाई जेवरात लूट लिए। मुतासरा शख्स के मुताबिक डाकू पहले हवेली में आए, जहाँ गन पॉइंट पर जमींदार को उसके घर ले गए। डाकुओं ने दौरान डकैती खवातीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। लूट मार के बाद डाकू अहले खाना को रस्सियों से जकड़ कर फरार हो गए। डकैती का दूसरा बड़ा वाकया फेरोज वटवा में पेश आया, जहां 2 मोटरसाइकिल सवार को कार्ड फ्रेंचाइज से लाखों नकदी छीन कर फरार हो गए। और अब बात करते हैं फिरोजवाला के इलाके राना टाउन की, जहां महराज दीन नामी शख्स ने इलाके में मिसाल कायम कर दी। टांग कटने के बावजूद मेहनत मजदूरी कर रहा है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे राना अवैस वहां मौजूद है। जी राना अवैस, मजीद क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ फिरोज वाला राना टाउन में। यहाँ पर एक मिराज नामी बंदे ने जो है मिसाल कायम कर दी। टांग कटी के बावजूद जो है वो मेहनत मजदूरी को उन्होंने अपनाया। इस वक्त अगर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं कि ये देखें, ये मिराज दीन है और ये इसकी टांग जो कटी हुई है। और इस वक्त यहाँ पर जो इलाका में की वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। ये इनसे भी जानते हैं कि इनका मिराज दीन की फैमिली के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, इनके मिराज दीन सर जो उनसे बुजुर्ग हैं हमारे, इनकी जो सी टांग टूटी हुई तकरीबन 7-8 माह हो चुकी है इनकी टांग कटी को। और इनके घर की हालत इतनी खस्ता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कि मेरे ख्याल से मैंने इनके घर एक मतलब गया भी था कि कानों की छत है और छत बारिशों में लीक करती है। और इनके पास एक टाइम में इतने पैसे नहीं होते कि ये अपने बच्चों को, बेटियों को, इनकी 3 बेटियां हैं और बेटा कोई भी नहीं इनका किया, कोई इनका सहारा बन सके। इनकी 3 बेटियां और उनको स्कूल भी नहीं भेज सकते, ना उनको पढ़ा सकते हैं और आगे उनकी शादियाँ भी करनी है। और इनके पास इतनी इमदाद नहीं है कि इनके साथ ये कुछ उनको पाल सकें या कुछ कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि इनके घर की जो छत है वो भी कच्ची है। और हमारे साथ एक और यहाँ पर शहरी मौजूद है, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या कहना है। भजन, ये बड़े बाहिम्मत शख्स हैं जो अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमा रहे हैं और इनकी टांग कटने के बावजूद ये मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इनके घर के हालात जो है वो नहायत खस्ता हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं इनके,
हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह के लोगों की मदद करें, ना कि वो जो सड़कों पे भीख मांगते हैं, अच्छे भले होते हैं, उनकी मदद करते हैं। इन जैसे लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि इनके बच्चों का पेट पल सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इलाका मकीन की बात सुनी, अब हम जानेंगे मराजदीन से कि जिनकी टांग कटी हुई है वो उन्होंने इस पेशे को अपनाया। आइए इनसे जानते हैं इस हवाले से। जी सर, मेरी टांग कटी को 4 साल हो गए हैं, इसलिए मैं मजदूर हूँ। शुगर की वजह से मेरी टांग काटी गई है और मैं इसलिए मेहनत मजदूरी कर रहा हूँ, किसी से भीख नहीं मांगता और अपनी मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाल रहा हूँ। और मेरी 3 बेटी हैं, बेटा मेरा कोई नहीं, मकान मेरा किराए का है। और पंजाब जिला से अपील है मेरी कि मुझे कोई मकान या काम लेके दें ताकि मैं अपना बैठ कर खाना खा सकूँ बच्चों के साथ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने मराजदीन की बात सुनी, उनका ये कहना है कि घर जो मेरा है वो किराए का है, 3 मेरी बच्चियां हैं और आला काम को चाहिए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार और वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील है कि इनकी मदद की जाए। जी मज़ीद खबरें भी शहरनामे में शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप देखते रहिए शहरनामा। वेलकम बैक। शहरनामे में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर आपको खबर देंगे गुजरावाला से, जहाँ पर चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरावाला मियां सुहेल फासिल का कहना है कि मॉनसून का पहला स्पेल शुरू हो चुका है, इसलिए नशेबी इलाकों और मसरूफ चौक में ट्रैफिक वार्डन्स की नफरी में इजाफा कर दिया गया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरावाला मियां सुहेल फाजिल का कहना है कि मानसून का पहला स्पेल शुरू हो चुका है। बारिशों की वजह से निशेबी इलाकों में जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, जिससे ट्रैफिक का बहाव मुतासर होता है। इसलिए निशेबी इलाकों और मसरूफ चौक्स में ट्रैफिक वार्डन्स की नफरी में इजाफा कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मीडिया को जारी अपने एक बयान में किया। जो स्कूल कॉलेज के जो लोग हैं वो बराबर बच्चे पहुँच सके, दफातर जो दफातर की ड्यूटी है वो भी बर वक्त पहुँचे और जो कारोबारी हजरात हैं वो भी अपने मार्केट्स वगैरह में अपने बर वक्त पहुँचे। इस सिलसिले में हमें कहीं भी ट्रैफिक का जो है अल्हम्दुलिल्लाह वक्ती तौर पर दूर मसला पैदा हुआ है, लेकिन ड्यूटी मौजूद होने की वजह से ये तमाम हमने टाइम इसको टैकल किया है। इस वक्त पूरे शहर में ट्रैफिक जो है वो रवाना हुआ है और हमारी फोर्स जो है ये इस सिलसिले में अपनी पूरी कोशिश कर रही है और मैं उम्मीद करता हूँ गुजरात के शहरी भी इससे मुतमिन होंगे। शहरियों ने चीफ ट्रैफिक ऑफिसर गुजरावाला मियां सुहेल फाजिल की कारकर्दगी को सराहते हुए इनको खराज तहसीन पेश किया है। कैमरामैन फाज खान के साथ मोहम्मद नदीम डार, मेट्रो 1 न्यूज, गुजरावाला। और अभी आपको बताएं कि शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर और डीएचओ के जाली दस्तखत का मामला। असिस्टेंट हिलाल अहमद सोसाइटी आरिफ डोगर ने डीसी और डीएचओ के जाली दस्तखत करके हिलाल अहमद सोसाइटी के अकाउंट से 41 लाख की रकम निकलवा ली। आपको बताएं कि शेखुपुरा में डिप्टी कमिश्नर और डीएचओ के जाली दस्तखत के मामले पर डीएचओ डॉक्टर आसिफ इकबाल की मुद्दत में असिस्टेंट आरिफ डोगर के खिलाफ डीसी और डीएचओ के जाली दस्तखत करने और रकम निकालने पर डीएचओ डॉक्टर आसिफ इकबाल की मुद्दत में थाना ए डिवीजन में मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। और अब रुख करेंगे शकरगढ़ का, तो आपको बताएं कि शकरगढ़ में भारत से दाखिल होने वाले बरसाती नाले में तोखयानी से मकीनों का शहर से राबता मुनक़ता हो गया है। आपको बताएं कि शकरगढ़ में भारत से दाखिल होने वाले बरसाती नाले में तोखयानी से मकीनों का शहर से राबता मुनक़ता हो गया। और अब खबर शामिल करेंगे ओकाड़ा से, तो आपको बताएं कि ओकाड़ा में यूनिवर्सिटी में तहकीकी मकासद के लिए 4 रोज़ा तालीमी और तफरीही टूर का इनकाद किया गया, जिसमें PhD एमफिल स्कॉलर्स ने शिरकत की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे फुरकान अहमद की इस रिपोर्ट में। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के ज़ेरे तमाम 4 रोज़ा तफरीही और तालीमी टूर का इनकाद किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के PhD एमफिल स्कॉलर्स और BS के फाइनल ईयर के तलबा और तलबात ने शिरकत की। चेयरमैन डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी डॉक्टर फहीम अरशद की ज़ेरे निगरानी तलबा और तलबात ने खानसपुर, नथिया गली और अयूबिया नेशनल पार्क से तहकीकी मकासद के लिए पौधों और मशरूम्स के नमूने इकट्ठे किए। इस मौका पर डॉक्टर फहीम अरशद ने तलबा को अयूबिया नेशनल पार्क और उसके मज़ाफ़ात में पाए जाने वाले पौधों के बारे में आगाही दी। दिस प्लांट इज द नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान। इसको आप कहते हैं सीड्रेस देवदारा। आप सिर्फ इसको देखिए, इसकी शाखें इस तरह हैं, बहुत ज्यादा प्राउडी है। दिस इज द बेसिकली थीम ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान का मेन है कि हम प्राइड करना चाहिए हमें अपने आप को। तलबा और तलबात ने कसीर तादाद में पौधों और मशरूम्स के नमूने इकट्ठे किए। डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर हीरा बशीर, डॉक्टर निदा हारून और PhD स्कॉलर डॉक्टर अब्दुल वहीद ने पौधों की निशानदही और उनको जमा करने में तलबा की रहनुमाई की। डॉक्टर निदा हारून और डॉक्टर हीरा बशीर का कहना था कि इकट्ठे किए जाने वाले पौधों के नमूनों पर तलबा यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के शोबा बॉटनी की लैब में असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी अपना तहकीकी अमल मुकम्मल करेंगे और उन पर अपने तहकीकी
की मुकालाजात पेश करेंगे। कैमरा टीम के साथ फुरकान अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, कोकाड़ा। और अब खबर देंगे आपको ठुल से। ठुल के नवाही गांव मीर हजार खान नंदवानी में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है। महकमा ताहाल ना पहुंच सका। हजारों एकड़ जमीन जेरे आब आ गई है। आपको बताएं कि ठुल के गांव मीर हजार खान नंदवानी में माछी नहर में 40 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया है, जिसके बायस हजारों एकड़ पर खड़ी चावल की फसल जेरे आब आ गई। देहातियों का कहना था कि अपनी मदद आपके तहत शगाफ को पुर करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमे के SDO समेत अमले को शगाफ की बर वक्त इतला दी, मगर ताहाल अमला जाए बखुआ पर ना पहुंच सका। स्टैम्प पेपर खरीदना आवाम के लिए मुश्किल बना दिया गया, जहां 100 और 1000 मालियत के स्टैम्प पेपर अब बैंक से मिला करेंगे। पाकिस्तान से 2020 तक स्टाम्प फरोशों को 4% कमीशन और सरफ फरोख्त 1000 तक महदूद किया हुआ था। अब हुकूमत ने स्टाम्प फरोशों की कमीशन 4% से कम करके 3% और 1000 से कम करके 400 कुछ रुपए कर दी है, जिससे स्टाम्प फरोशों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और आवाम के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। और मैंने 1000 वाला स्टाम्प लेना था, लेकिन यहाँ पर जब स्टाम्प लेने के लिए आया हूँ तो यहाँ पर जो मुश्किलात और इतनी शदीद गर्मी में जो बातें सुनने को मिली हैं कि आप बैंक जाएं, चालान जमा कराएं, फिर वहाँ पर लाइन में लगें और फिर आपको स्टाम्प मिलेगा। पहले वाला सिस्टम ठीक। मैं इधर 500 वाला स्टाम्प लेने आया था, मगर यहाँ बता रहे हैं कि ये 500 वाला स्टाम्प हुकूमत ने बैन कर दिया। कहते बैंक जाओ, ई चालान भरो। इतनी शदीद गर्मी है, वहाँ बैंक जाते हैं, बैंक में बहुत ज़्यादा रश है। यहाँ आसानी से 500 वाला स्टाम्प मिल जाता था, लेकिन हुकूमत की कुछ पॉलिसी की वजह से ये आवाम बहुत परेशान है। 500 वाला तो स्टाम्प हम दे ही नहीं सकते। अब 500 वाला देता है बैंक का पंजाब, वो भी पहले चालान बनता है ऑनलाइन चालान बनने के बाद बैंक में जाते हैं, बैंक वाले कहते हैं खिदमत सेंटर जाओ, खिदमत सेंटर वाले कहते हैं बैंक में जाओ। अगर हुकूमत पाकिस्तान दोबारा से स्टाम्प फरोशों को 4% कमीशन और उनको शरह फरोख्त 1000 या उससे ज़्यादा की फ़रोख्त की इजाज़त दे दे तो ये मुश्किलात हल हो सकती हैं। जहाँ स्टाम्प फरोशों की रोज़ी बढ़ेगी, वहाँ पर आवाम को भी परेशानी से निजात हासिल होगी। कैमरामैन टीम के साथ शेख रमज़ान नदीम, मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी खान। और अब रुख करेंगे चूनिया का। तो आपको बताएं कि चूनिया में ड्रग इंस्पेक्टर लाइकुर रहमान खान का तहसील भर में ड्रग एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। आपको बताएं कि बगैर लाइसेंस के क्लिनिक चलाने पर क्लिनिक को सील कर दिया गया। चालान ड्रग कोर्ट भेज दिया गया है। ड्रग एक्ट ने बगैर लाइसेंस के क्लिनिक चलाने पर नसीर चौधरी नामी शख्स के क्लिनिक को सील करके चालान ड्रग कोर्ट भेज दिया और दरबार शेख अलमदीन पर अताई डॉक्टर नईम के क्लिनिक पर छापा मारकर बगैर वारंटी के मेडिसिन कब्जे में लेकर ड्रग लेबोरेटरी भेज दिया है। जबकि ड्रग एक्ट का मीडिया से बात करते हुए मजीद कहना था कि मैं बगैर किसी प्रेशर की कार्रवाई जारी रखूंगा। बात करेंगे पतोकी के हवाले से, तो आपको बताएं कि पतोकी में सैकड़ों देहातों को मिलाने वाला चोचक रोड मसीहाओं का मुंतज़िर बारिश की 4 बूंदें बरसते ही मेन चौक नहर का मंजर पेश करने लगा। पतोकी में बारिश के बाद सैकड़ों देहातों को मिलाने वाला चोचक रोड पर पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुतादिद घंटे गुजरने के बाद भी इंतजामिया मौके पर ना पहुंच सकी। और आपको बताएं, लालिया में DPO बिलाल जफर की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। आपको बताएं कि लालिया में DPO बिलाल जफर की हिदायत पर पुलिस का जराइम पेश अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करके मुख्तलिफ इलाकों से मनशियात फरोश 7 मुलजिमान को गिरफ्तार करके कब्जे से भारी तादाद में मनशियात बरामद कर ली। और यहाँ आपको बताएं कि नए तैनात होने वाले चौकी इंचार्ज पतोकी हबीबाबाद और दिलशाद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इस मौके पर उनका कहना था कि शहर को मनशियात से पाक करने और नौजवान नस्ल को मनशियात से महफूज रखने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। मनशियात फरोशों से आईनी हाथों निपटा जाएगा। नौजवान नस्ल को मनशियात के इस्तेमाल का आदी बनाने वाले अफराद किसी भी रियायत और मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करने की किसी को हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी।
खबर देंगे आपको पाकपतन से। पाकपतन में जहरीले पराठे खाने से मां और 4 बच्चों की हलाकत के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया, जहां बहक अफराद को घी में जहरीली गोलियां मिलाकर कत्ल किया गया। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक जहां बहक बच्चों के कज़न हमजा और अजीम ने बच्चों के वालिद की डांट से तंग आकर घी में जहरीली गोलियां मिला दी। घी से बनाए पराठे खाने से मां और 4 बच्चे जहां बहक हो गए। पुलिस ने दौरान तफ्तीश दोनों मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।